غریب صحابی کا دل نہ ٹوٹنے پائے، میرے کسی غریب امتی کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ننگی چٹائی بچھا کر اس میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صحابی آ گئے رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، نبی کی جگہ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے تھے تو نبی کے پشت مبارک پر، نبی کی پیٹھ پر کھجور کی چٹائیوں کے نشان دیکھ کر نبی کے صحابی رونے لگے۔ یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے، آپ اگر چاہے تو بادشاہوں سے بہتر زندگی، بہتر سامان کا ہم انتظام غلام آپ کے لیے کر سکتے ہیں، مگر یا رسول اللہ یہ آپ کے پشت آدھار پہ ایک کھجور کی چٹائیوں کے نشان پڑ چکے ہیں۔ یا رسول اللہ ہم گدا بنوا کر کے آپ کے لیے پیش کر دیا پیش کر دیں گے، آپ اس پہ آرام فرمایا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے لگوں گا تو میرے غریب صحابہ کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے غریب امتیوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میں غربت کی زندگی تمہارے درمیان گزر کر سکتا ہوں مگر میں کسی صحابی کا دل نہیں توڑ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے کسی غریب امتی کا دل نہیں توڑ سکتا ہوں۔ نبی کے امتی ہو، رسول اللہ نے تم سے اتنا پیار کیا ہے، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، جو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں۔ جس رسول اللہ کے پاور کا عالم یہ ہو کہ رسول اللہ اگر چاہ لے تو سونے کے پہاڑ رسول اللہ کے ساتھ چلا کرے۔ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوکھی روٹی، کھجور کی سوکھی روٹی تناول کرتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو پیٹ کے پتھر باندھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک فاقے کیا کرتے ہیں، کبھی تو شاید کہتا ہے خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے ساتھی ہے محمد کے گھرانے والے، کیسے ساتھی ہے محمد کے گھرانے والے۔ رسول کائنات میں غریبوں والی زندگی اس لیے بسر کی ہے میرے کسی غریب امتی کا دل نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج جناب جمال احمد چچا جمال احمد صاحب کی بیٹی کا انتقال ہوا، 17 سال کی جوان سال بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرات جو آئندہ سال انشاءاللہ دستار عالمیت سے نوازی جانے والی تھی، حضرات یہ جو اولادوں کے انتقال پر تکلیف جو ہوتی ہے، درد جو ہوتا ہے، مگر جس اولاد کو ماں باپ نے پال کر کے جس کا بچپن حفاظت کے ساتھ گزار دیا ہے، جس کی جوانی حفاظت کے ساتھ کی چکی ہے، جو بالغہ ہو کر کے جو ہے شادی کی عمر کے قریب پہنچ چکی تھی، ایسی بچی جب رخصت ہو جاتی ہے تو ماں کا کلیجہ بھی جانتا ہے کہ لخت جگر جو ہے جدا ہو چکی ہے، باپ ہی کا کلیجہ جان سکتا ہے جوان سال بیٹی کے یا بیٹے کے انتقال پر۔ لیکن یہ بھی موقع امتیوں کے درمیان آنے والا تھا، اس لیے نبی کے کونین کو اللہ نے اس منزل سے بھی گزارا ہے تاکہ کل جب کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے تو میرا امت ہمارے غم کے طرف کے کم نہ توڑ رہے، اسے صبر نہ آ سکے۔ اس لیے رسول اللہ بھی اس درد سے گزر چکے ہیں۔ آؤ دیکھو پیارے، وہ رسول کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر حسن و ملاز سے انہیں پاک و صاف رکھا ہے، مگر لباس بشریت پہن کر جب رسول اللہ ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں تو ہمیں سکھانے کے لیے رسول اللہ شادی بھی کرتے ہیں۔ ہماری اولادوں کا انتقال جب ہوگا تو ہماری امت اپنی اولادوں کے پیار میں تڑپے گی۔ حضرات یہ درد محسوس کیا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو بھی اس درد سے گزارا ہے تاکہ میرے نبی کے امتی کو جب یہ درد ہو تو یہ سوچ کر کے صبر کر لیا کرے کہ میرے مصطفیٰ کو بھی اس درد سے گزرنا پڑا تھا۔ آج جناب جو ہے جمال احمد چاچا کی بیٹی کا جو انتقال ہو گیا، حضرات اللہ اسے رحمت و نور کی بارش میں رکھے اور اسے اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آؤ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غم سے کیسے گزرتے گئے۔ آج جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ماں باپ تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، رشتے دار تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ انتقال تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی سنتا ہے تڑپ جاتا ہے۔ ہم یہاں آنے کے بعد پتا چلا اس 17 سال کی بیٹی جو عالمہ ہونے والی تھی وہ جو اس دار فانی سے رخصت ہو کر کے قبر کی تاریکیوں میں چلی گئی ہے۔ حضرات جب سن کر کے ہم کو ان کی تکلیف ہوئی تو جس کلیجے کا جو ٹکڑا رہا ہوگا اس باپ کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی۔ جب ہم کو سن کر کے جب کہ ہم نے دیکھا بھی نہیں، آج پہنچتے ہی جب ہم نے سنا ہے، مگر انسانیت کی وجہ سے جب ہمارا دل تڑپ اٹھا ہے تو اس ماں کا کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، اس باپ کے کلیجے پہ کیا بیتا ہوگا۔ مگر ان کے ماں باپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، آؤ تو سب کے لیے سب کی تلقین ہی کر سکتے ہیں اور
मकाम रसूल के साथ हमारे सामने रसूल की सीरत भी रखते हुए चले जाते हैं। आज अपने सर को, अपने इस गम को सर के जरिए छुपाने की कोशिश कीजिएगा। बिला शुबा माँ बाप अपनी औलाद से जितनी मोहब्बत करते हैं कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि माँ बाप के जिगर का टुकड़ा उनकी औलाद होती है, माँ बाप की आंखों का तारा औलाद होती है, माँ बाप के बूढ़े बुढ़ापे का सहारा औलाद होती है। बड़ा तकलीफ में मंजर होता है जब कोई बाप अपने नौजवान बेटे की लाश को अपने कांधे पर उठा के ले जाता है। बड़ा अजीब गरीब मंजर होता है जब कोई बाप अपनी बेटी के नवाज़े जनाजा को कांधा दिया करता है। मगर रसूल कायनात ने लिबास बशरियत ओढ़ करके इस गम को भी बर्दाश्त किया ताकि मेरी उम्मत पर जब ऐसी नागहानी आफत आ जाए तो मुझे देख करके मेरी उम्मती को सब्र हो जाए। और देखो प्यारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 साल के 2 महीने के जब अपनी माँ हज़रत आमिना को शिक्र मुक़द्दस में जब लगे थे, तारीख के हवाले से आप बहुत मरतबा सुन चुके होंगे। अपनी माँ हज़रत आमिना के शिक्र मुक़द्दस में जब नबी करीम सिर्फ 2 महीने के थे तब नबी के वालिद मुहतरम हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल कैसे हुआ? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह को अपने दरबार मदीना तैयबा में भेजा था कुछ कारोबार के लिए। वहीं पर हज़रत अब्दुल्लाह की तबीयत नासाज हो जाती है और शहर मदीना के इलाके में हज़रत अब्दुल्लाह का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। सफर के लोग आकर के हज़रत अब्दुल्लाह के इंतकाल की खबर पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देते हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे और वहीदे बेटे हज़रत अब्दुल्लाह थे। सुनते ही सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं सबसे प्यारा बेटा जो मेरा था आज मेरी दुनिया से रुखसत हो चुका है। जब हज़रत अब्दुल्लाह के इंतकाल की खबर उनकी बीवी हज़रत आमिना को मिलती है तो हज़रत आमिना को शादी किए हुए अभी चंद ही महीने गुजरे थे और पेट के अंदर 2 महीने ही का हमल हो चुका था। शौहर नामदार का इंतकाल हो चुका है, शरीक जिंदगी का इंतकाल हो चुका है, शरीक सफर का इंतकाल हो चुका है। तारीख की किताब उठा करके देखो कि जब अपने शौहर हज़रत अब्दुल्लाह के इंतकाल की खबर हज़रत आमिना को मिलती है तो अरबी अशआर के जरिए हज़रत आमिना ने इतना दर्दनाक अशआर कहा है कि जिसके सुन करके आपकी कलेजा फटने को तैयार हो जाता है, आपकी कलेजा कमजोर है, आपकी कलेजे में दर्द पैदा हो जाता है। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शरीरा में शौहर हज़रत अब्दुल्लाह के इंतकाल पुरमलाल के ज़ारुल कतार रो रही है। रात को नबी के कौमें में अपनी माँ के शिक्र मुक़द्दस में सिर्फ 2 महीने के बाद अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है और जब वही नबी के कौमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन बीबी पे चलवा अफरोज होते हैं। 6 साल की उम्र नबी के कौमें की हो जाती है। नबी की माँ हज़रत आमिना नबी के दरिहाल में रसूलुल्लाह को लेकर के नबी के दरिहाल में मक्का मुकर्रमा जाती है। जब मक्का मुकर्रमा से आत्मा वापस हो रहा था तो अबवा नाम के गांव के करीब हज़रत आमिना की तबीयत बिगड़ जाती है, बुखार में तपिश आ जाती है, बुखार में शिद्दत आ जाती है और उसी बुखार के आलम में सफर की हालत में हज़रत आमिना का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। आज की तरह इतना इंतजाम नहीं था। आज सऊदी में इंतकाल होता है तो लाश आपके घर हिंदुस्तान में पहुंचा दी जाती है। आज मुंबई में इंतकाल किसी का हो जाता है, आपके किसी प्यारे का इंतकाल जब मुंबई की सरजमीन हो जाता है चंद घंटों के अंदर लाश आपके गांव के कब्रिस्तान के हवाले आपके हवाले कर दी जाती है। कुछ तो सब्र होता है, कुछ तो तकलीफ है, सब्र हो जाता है कि मेरा लाल अगर से मर चुका है मगर लाश ही का चेहरा देखना नसीब हो रहा है। उस दौर में ऐसा इंतजाम नहीं था। सफर की हालत में नबी की माँ का इंतकाल हो रहा है और सफर ही की हालत में मावरा नाम के गांव के करीब हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कब्र के हवाले कर दिया जाता है। नबी की उम्र शरीफ सिर्फ 6 साल की है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस 6 साल के बच्चे के कलेजे पे क्या बीता होगा? अबवा की सरजमीन पर जो दुनिया में आने से पहले अपने बाप को खो चुका है, उस बुरे यतीम के कलेजे पे क्या बीता होगा? जब उसने दूसरे के वालिदों को देखा होगा और अपने बाप का चेहरा देखा जब रसूलुल्लाह को नसीब नहीं हुआ होगा, जो रसूलुल्लाह जैसे बुरे यतीम के चेहरे पे क्या बीती होगी? मगर गम को बर्दाश्त किया बचपन में रसूलुल्लाह ने और जब 6 साल की उम्र हो चुकी है तो सफर की हालत में माँ का इंतकाल हो चुका होता है। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे 6 साल के बच्चे के कलेजे पे क्या बीतता होगा? 6 साल का बच्चा होश वाला होता है, 6 साल का बच्चा समझने के लायक हो जाता है। हमारे रात के घरों में जो 6 साल
साल के बच्चे होते हैं वो समझ बूझ के लायक हो जाते हैं। जबकि रसूलुल्लाह के बचपन का आलम ये था कि जो बच्चे 1 साल में पढ़ा करते थे उतना रसूलुल्लाह 1 महीने में पढ़ पाया करते थे। और बच्चे जो 1 महीने में जिनकी हाइट हुआ करती थी, लंबाई करते थे, रसूलुल्लाह को अपनी लंबाई 1 दिन में बढ़ जाया करती थी। आज 6 साल का हमारा बच्चा खूब जानता है कि यहाँ क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, वो बोलना भी जानता है, वो समझना भी जानता है, वो अगल से सोचना भी जानता है। जब आज हमारे और आपके 6 साल के बच्चे ये सब कुछ जान सकते हैं तो 6 साल के मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हालत सफर में रहे होंगे उनको भी पता चला होगा कि जिस बाप का इंतकाल इसी माँ के शिकम में 90 महीने का था और बाप अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका था। आज हालत सफर में 6 साल की उम्र हो चुकी है, माँ का साया भी सर से उठ चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलेजे पे क्या कहता होगा? हालत सफर में अबवा नाम के गांव के करीब हजरत आमिना को कब्र के हवाले कर दिया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह की एक पाती थी जिनका नाम हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा था। उन्होंने रसूलुल्लाह को लिया और काफिला वालों के साथ सफर करते हुए 6 साल के बच्चे रसूलुल्लाह को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। उस रसूलुल्लाह के कलेजे पे क्या कहता होगा? तो महीने के जब माँ के शिकम में थे तो बाप का चेहरा, बाप का इंतकाल हो चुका है। 6 साल के हुए तो हालत सफर में माँ का इंतकाल हो चुका है। जब अब्दुल मुत्तलिब के किफाला में आते हैं तो चंद साल अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास बेटा करते रहते हैं। जब बेटे का भी इंतकाल हो चुका है अब्दुल्लाह का, और जब बहू का भी इंतकाल हो चुका है आमिना का, तो हजरत अब्दुल्लाह और हजरत आमिना की तरह निशानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में बेटे की सूरत में हजरत अब्दुल मुत्तलिब पा रहे हैं। वही हजरत अब्दुल मुत्तलिब है रसूलुल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं, अपने साथ खिलाते हैं, अपने साथ पिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ जगाते हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि 8 या 10 साल की उम्र रसूल कायनात की हो जाती है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया भी सर से उठ जाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो जवानी में हम तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, आज जो बुढ़ापे में हम तकलीफ अपने अजीजों के इंतकाल के बर्दाश्त करते हैं, कसम खुदा की उन तकलीफों से रसूलुल्लाह बचपन ही में गुजर चुके हैं। आज जवानी में जिन बच्चों के इंतकाल पर हम तड़प जाते हैं, जिन बुढ़ापे के आलम में जिन बच्चों के इंतकाल में हम तड़प जाते हैं, वो तक रसूलुल्लाह ने बचपन ही में सह लिया है, वो तक रसूलुल्लाह ने बचपन ही में महसूस कर लिया है। बाप का इंतकाल कर रसूलुल्लाह ने बचपन में बर्दाश्त किया है। 6 साल की उम्र में माँ के इंतकाल कर रसूलुल्लाह ने बचपन ही में इंतकाल किया है। 8 या 10 साल की उम्र में दादा का इंतकाल कर रसूलुल्लाह ने बचपन ही में सब्र किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर दिया और कहा है अबू तालिब तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्लाह की आखिरी निशानी है, तुम इसकी किफायत करना, तुम उसकी परवरिश करना। अल्लाह अकबर कबीरा। किस किस की किफायत में रसूलुल्लाह का ज़माना गुजरता रहा। बाप का इंतकाल हो चुका है, माँ की किफायत में आते हैं, माँ का इंतकाल हो चुका है। अब्दुल्लाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के किफायत में परवरिश में आते हैं। अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है, चाचा ने पाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरा होगा जिसको बचपन से लेकर के जवानी तक जिसको चाचा ने पाला हो। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हो जाती है। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल की है। 2 शौहरों की बेवा हजरत खदीजा थी और दोनों शौहरों से 2 बच्चे हजरत खदीजा के भी थे। रसूलुल्लाह की करामत को देख करके, रसूलुल्लाह की हैसियत को देख करके हजरत खदीजा ने खुद भी पैगाम देकर भेज दिया। चुनांचे जनाब अबू तालिब ने हजरत खदीजा से रसूलुल्लाह का निकाह कर दिया। रसूलुल्लाह का घर बस जाता है और रसूलुल्लाह के यहाँ कवालीद व तनासुल का सिलसिला जारी होता है। रसूलुल्लाह के यहाँ औलादे होती है, 3 बेटे और 4 बेटियां होती है। मगर रसूलुल्लाह ने बचपन में अपने बाप के इंतकाल का दर्द बर्दाश्त किया, बचपन में अपनी माँ के इंतकाल का दर्द बर्दाश्त किया और बुढ़ापे का जवानी के आलम में अपने अब्दुल मुत्तलिब के दर्द को एहसास किया है। बुढ़ापे और जवानी ही के आलम में अपने चाचा अबू तालिब के इंतकाल के दर्द को बर्दाश्त किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए हैं। मगर अज़ाब कब्र का मंजर को देखो, जब रसूलुल्लाह के ये 3 बेटे होते हैं तो बचपन ही में 3 बेटों का भी इंतकाल हो जाता है। नबी के बेटे
حضرت قاسم کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے، نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال بھی بچپن میں ہو جاتا ہے۔ نبی کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم کا بھی انتقال بچپن ہی میں ہو جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ کے تینوں بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا۔ اس باپ کے کلیجے پہ کیا بیتا ہوگا جس کے بچپن میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا ہے۔ آج جوانی کے اندر اللہ نے جسے 3 بیٹے عطا کیے ہیں، تینوں بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ درد صرف ہمارا نہیں ہے، یہ درد صرف آپ کا نہیں ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے بھی برداشت کیا ہے۔ یہ سب کیوں کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے برداشت کیا ہے۔ کل میری امت میں ایسا مصیبت کا دن آ جائے تو میری امت نہ کرتے اپنے عزیزوں کے انتقال کے غم میں، اس لیے رسول اللہ نے یہ غم برداشت کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول کائنات کے تینوں بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ رسول اللہ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت مذہب اسلام نے شریعت